Good evening, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, Okay. sir. Let us start now. I Yes, think in sir. the last lecture we had seen the basic background of GST. क्या क्या देखा था? Do you have any idea regarding to this GST? What we had studied in the last lecture? Can you just tell me whether this is your optional subject or compulsory subject? Yes, students. Your optional subject or compulsory subject? So internal level, sir. Finance. Not internal level paper, na? Not Sorry, voice talking. is breaking. Okay, I think this is a internal paper. Means what? University of Pune will not conduct the examination, but being a finance students, you should know tax. Getting this? That's why this subject is introduced to your syllabus. So in the last lecture, we had seen some basic backgrounds of the GST. That is the goods and services tax, and it is called as an indirect tax. Why it is called as an indirect tax, that we had seen. Then along with this, we had seen the various components of GST. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को शायद हम लोगों ने ये देखा था सब कुछ जीएसटी स्टार्ट कब होगा हुआ उसकी सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, दैट इज एक्साइज ड्यूटी. उसके बाद क्या क्या था? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद सर्विस टैक्स, देन वैट. तो ईच सबको क्या किया है? जीएसटी ने रिप्लेस किया है. And this GST Act was passed in the Parliament in year 2017 और उसको इफेक्ट कब से किया? 1 जुलाई से विथ इफेक्ट किया है. दैट वी हैड सीन इन द लास्ट लेक्चर. देन उसका हिस्ट्री चालू किया. हिस्ट्री भी हम लोगों ने देखा था. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द टैक्स, वो भी हम लोगों ने देखा था. एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में क्या था? It was not a destination oriented. It was manufacturing or organization related. The existing tax tha. Now GST is replaced this. Now GST is related to destination based tax. Destination based tax means what? The state in which this tax, the goods are going on, the state, particular state in this goods and services are going on, or the particular manufacturer, particular service provider, or the particular customer is getting this kind of services, at that time the particular state will get the benefit. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल, I am a manufacturer of Gujarat. I will prepare finished goods and I will sell these finished goods into Maharashtra. Now your customer is staying in Maharashtra. Getting this? Means what? This is a interstate. This is an interstate. This is the transaction between two states. So being a transaction between two states, you are liable to pay IGST, that is integrated tax. So this entirely IGST goes towards the central government. Out of this 50%, central government will keep itself, and rest of this 50% तो किसके पास जाएगा ये टैक्स? मैंने लास्ट लेक्चर को बताया था आपको. यस, गुजरात से माल महाराष्ट्र आ रहा है. गेटिंग दिस? तुम द पर्सन इज गोइंग टू पे सेंट्रल गवर्नमेंट के Sorry, voice is breaking.
Yes. From central government or with? Yes. Sir, you are not audible properly. Sorry, sir, but your voice is breaking. Okay, 1 minute. But I have range. 1 minute. Are you getting now? Yes, sir. Okay, so what we had seen, this GST is the destination oriented. Destination oriented यानी जिस स्टेट में, जिस पर्टिकुलर मेरा जहां पे मेरा कस्टमर रहेगा, ओके, जिस स्टेट में मेरा कस्टमर रहेगा, दैट स्टेट विल एंजॉय द जीएसटी बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट. मैंने एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल, लेट अस से आई एम अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात. I am sending the goods and services within the state of Gujarat. At that time, I have to pay CGST as well as SGST. CGST goes directly to the central government and SGST will be collected by Gujarat government. This is the first case. Second case, as a manufacturer of Gujarat, I have few orders from Maharashtra. Try to understand. As a manufacturer of Gujarat, I have few orders from Maharashtra. And if I send the material from Gujarat to Maharashtra, at that time your state is changing. Your state is changing. That time you have to pay IGST. अगर within state रहा तो CGST और IGST both taxes you have to pay. One tax will go towards the central government and second tax will go towards the state government. Now in second condition क्या है situation? You have one customer which is in Maharashtra, and when you pass the goods towards the Maharashtra, at that time you have to pay or you have to collect which kind of tax? That is IGST, that is called as integrated tax, because you are changing state. That time whatever is the amount of this tax, for let us say 18%, it will go directly to the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. उसमें से क्या करेगा? 50% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट विल कीप देयर एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी सेंड टू विच स्टेट? ये मेरा क्वेश्चन था. तो यहाँ पे आईजीएसटी के फॉर्म में जितना भी पैसा भरा रहेगा तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? वेदर दिस बेनिफिट विल बी टेकन बाय गुजरात गवर्नमेंट और दिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट? ये मेरा क्वेश्चन था. डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? यस और नो? Yes, sir. तो क्या क्वेश्चन है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? हु विल टेल मी द क्वेश्चन? सो अदर पीपल विल अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन. Yes, who will tell? How many? 14 students are there. आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनर, पैसिव लिसनर सुना है क्या? यू आर इन 4th सेमेस्टर ना? बिजनेस कम्युनिकेशन लैब या मैनेजरल कम्युनिकेशन, ये इसी टाइप के सब्जेक्ट रहेंगे आप? No, sir, we are in 3rd semester. सो फर्स्ट सेमेस्टर को इंटरनल सब्जेक्ट में बिजनेस third कम्युनिकेशन, semester. मैनेजरल कम्युनिकेशन था या नहीं था? उसमें एक्टिव लिसनर और पैसिव लिसनर है. मेरा क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट टेल मी. यस सर, गुजरात से माल महाराष्ट्र में आया तो जीएसटी कहाँ पे पेड करना है? आपका जीएसटी का क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट किसको मिलेगा? गुजरात को नहीं मिलेगा, क्योंकि
because it is destination oriented tax, it is not manufacturing oriented tax. जो earlier हमारा टैक्स था, कौन सा टैक्स था? मेरा टैक्स था एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी वाज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स. जिस कंट्री में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वहां पे मुझे टैक्स देना है. गेटिंग दिस? लेकिन जीएसटी इज द डेस्टिनेशन ओरिएंटेड. इट इज रिलेटेड टू सप्लाई. जीएसटी वुड एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज as against the present concept of tax was the manufacture of goods. पहला जो हमारा कंसेप्ट था एक्साइज ड्यूटी का बिफोर एंट्री ऑफ जीएसटी, इट वाज मैन्युफैक्चर रिलेटेड. जिस स्टेट में उसका मैन्युफैक्चरिंग रहेगा उसी स्टेट को उसका जीएसटी क्रेडिट मिलता था, सिनेमेट का क्रेडिट मिलता था. यहाँ पे उल्टा है. यहाँ पे क्या है? दो द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय वन स्टेट बट वेयर इट इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट, तो उसी पर्टिकुलर स्टेट को उसका बेनिफिट मिलेगा. उसी पर्टिकुलर स्टेट को उसका बेनिफिट मिलेगा. मींस दैट पर्टिकुलर स्टेट will get the benefit of that GST because here the amount or that product or that service is sold into that particular state. कौन से? महाराष्ट्र में सेल किया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा, not for गुजरात गवर्नमेंट. Try to understand this. I have produced goods and services into Gujarat and I am selling these products into the Maharashtra. At that time Maharashtra government will get contribution of that IGST. जो IGST हम लोग पेमेंट करेंगे तो उसमें से 50% सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास रखेगा और 50% वापस भेज देगा. कौन से स्टेट को देगा? नॉट फॉर गुजरात गवर्नमेंट. इट विल सेंड टुवर्ड्स द महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिकॉज एक्चुअल कंजम्पशन इज इनटू दैट पर्टिकुलर स्टेट. जीएसटी क्या है? जीएसटी किससे वसूल करते हैं हम लोग? ये जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स किससे वसूल करते हैं हम लोग? रिकवरी किससे करते हैं? यस, कस्टमर से. कस्टमर कहाँ का है मेरा? महाराष्ट्र का है या गुजरात का मेरा कस्टमर है? गुजरात का. कस्टमर मेरा मैन्युफैक्चरर गुजरात का है रे. कस्टमर महाराष्ट्र का है सर. कस्टमर महाराष्ट्र का है. दैट्स व्हाई द पर्सन वेयर द गुड्स हैज बीन यूटिलाइज्ड, that state has authority to get the portion of IGST. यही प्रिंसिपल है जीएसटी का. आप कितना भी मैन्युफैक्चरिंग करो गुजरात में, अगर आप गुजरात में माल नहीं बिकते हो ना तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा. Getting this? We have to find it. That's why it is called as a destination oriented tax, which is the final destination of my goods. ऐसा भी हो सकता है. Let us take an example. गुजरात से मैंने एज अ सप्लायर आई विल परचेस द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गुजरात एंड आई विल सेंड इट टू मध्य प्रदेश. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने गुजरात से माल लिया. देयर आर 3 पार्टीज नाउ. वन इज फ्रॉम गुजरात, सेकंड इज फ्रॉम महाराष्ट्र एंड थर्ड विल बी फॉर मध्य प्रदेश. तो कहां से मटेरियल कहाँ जा रहा है? तो महाराष्ट्र से. जो गुजरात से मैं मैन्युफैक्चरिंग परचेस करूंगा, महाराष्ट्र में लाऊंगा और उसके बाद वही कहां पे जाने वाला है मटेरियल? माय ultimate end user is in Maharashtra, sorry, in Madhya Pradesh. So that Madhya Pradesh government is collecting the tax. He will get that government, he will collect this tax of IGST, portion of IGST. That's why this is called as a destination oriented tax. Try to understand why it is called as a destination based tax. Okay. अभी जीएसटी हम लोग जब पे करते हैं तो ड्यूअल जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है. ड्यूअल जीएसटी means what? One portion will go. For example, rate of GST is 18%. मान लो तो 18% से ड्यूअल जीएसटी में I have to pay one tax, but its effect will go. One effect will go to the central government and one effect will go to the state government. तो 18% से 9% directly central government के custody में जाएगा and 9% will be go to the respective state. Okay, and GST is called as a one time, it is the one tax for one nation. One tax for one nation. इसका मतलब क्या है? जो कुछ जीएसटी रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग तैयार करेंगे, this will be decided at central level.
and all the rules and regulations, all the tax related systems, all the tax formalities are common for entire states. All the states 32 जितने भी states है सबके लिए same है. Means what? State has not given any kind of power to change the GST rules. That's why it is called as a one indirect tax for entire country. तो जो कुछ उसमें अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, जो कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे, सो दीज आर एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री. दैट वाज द बैकग्राउंड व्हिच वी हैड स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. क्योंकि बहुत गैप पड़ा हमारा. नाउ जस्ट लुक एट दिस. ये हम लोगों ने डायग्राम भी देखी थी. So there are CGST, SGST, UTGST and IGST. That this diagram also we had studied in the last lecture. अगर within state अगर transaction होता है, means within Maharashtra, means what? Manufacturer is from Mumbai and this manufacturer is selling goods and services to the person who is customer who is in Nagpur. That time Nagpur is part of Maharashtra, Mumbai is also part of Maharashtra. At that time I have to pay dual tax in the form of CGST and IGST. Try to understand. Means what? This transaction is within one state. If I'm sending material from Maharashtra to Gujarat, at that time state is changing. That time there is no need to pay CGST and SGST. That time I have to pay IGST. I have to pay IGST because this is the inter-state transaction. दोनों state के दौरान transaction है. At that time, the rate of GST is equal to CGST plus IGST. यहाँ पे विदिन स्टेट जितना भी हम लोग टैक्स पेमेंट करने वाले थे, सेपरेट हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट को और सेंट्रल का हिस्सा जाता था और स्टेट को स्टेट का हिस्सा आता था. अभी IGST पे करने से क्या होता है? टोटल अमाउंट, first total amount of IGST, that is 18%, directly goes to the central government के पास जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उतना पैसा जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? उसमें से आधा हिस्सा खुद के पास लेगा और बचा हुआ रेस्ट ऑफ द अमाउंट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को, जहां पे एक्चुअल कंज्यूमर मेरा रहेगा, जिस स्टेट से कंज्यूमर रहेगा, जहां पे फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा गुड्स का, उसी स्टेट को वापस दिया जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम, वंस द ट्रांजैक्शन हैज बीन फुलफिल्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो दिस इज कॉल्ड एज अ IGST. गेटिंग दिस? उसके बाद एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी को जा रहा है. यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश. तो एट दैट टाइम going to the union territories, one of the, for GST purpose, that a union territory will be also considered as a one separate state. Being a separate state, your goods are going from one state to one union territory. At that time you have to pay, that is IGST, that is integrated GST. तो इंटीग्रेटेड GST में क्या हो जाएगा? पूरा पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाने के बाद, वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद, उसका जीएसटी काउंसिल में GSTN नंबर अपडेट होने के बाद, सब कुछ ट्रांजैक्शन का एंट्री होने के बाद, वो क्या करेगा? आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और बचा हुआ हिस्सा UTGST को मिलेगा. जिस UTGST यानी केंद्र शासित प्रदेश, फॉर एग्जांपल दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ओके, उसके बाद अंडमान निकोबार, सो दीज आर दी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज. अगर उसमें अगर ट्रांजैक्शन होता है मेरा, अंडमान निकोबार से मैं महाराष्ट्र से माल अगर भेज रहा हूं, एट दैट टाइम IGST आई हैव टू पे, ओके, टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. और उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? दैट वेयर दिस एक्चुअल गुड्स आर बीइंग कंज्यूम्ड, कौन से पर्टिकुलर एरिया में, कौन से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में गुड्स या कंज्यूमर मेरा रहता है, कस्टमर मेरा रहता है, उसी स्टेट को उसका बेनिफिट मिलेगा. उसके बाद अगर UTGST में होता है, अंडमान निकोबार का ही मैन्युफैक्चरर है और अंडमान निकोबार का ही क्या है, कंज्यूमर भी है, तभी जाके कौन से टैक्सेस लगेंगे? वन इज द CGST, इट विल गो टुवर्ड डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड UTGST, UT स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स.
So that time UTGST is the specific that will directly collected by that union territories. और उसके बाद UTGST से अगर goods foreign territory को जाता है तो that time also I have to pay IGST, that is integrated tax, that will go directly towards the central government. Okay, अभी ये UTGST, CGST, SGST, IGST, तो इसके क्या किए हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक का लॉ बनाया है, because as per law it should work. So we have passed the CGST law, SGST law, UTGST law and IGST laws in the parliament. On that basis of this, now constitution is giving me right to collect CGST, SGST, UTGST and IGST. So that is something about understanding of CGST. अभी component देखिए, same thing is there. So basically there are three, that is three forms of GST: CGST, SGST and IGST. CGST collected by central government in case of अगर intrastate sale रहेगा, means what, within Maharashtra means what, manufacturer and consumer are from same state, at that time CGST will be applicable. Along with this, SGST is there. SGST will be collected by in case of intrastate sale. So I have to pay dual GST in dual model or dual transaction में. तो जब वन टाइम में टैक्स पर पेमेंट करूंगा उसका ऑटोमेटिकली क्या है, दिस इज समथिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर किसको दिया है, इसका काम इन्फोसिस कंपनी को दिया है. उसका कॉस्ट कितना है, 1400 crores रुपीस को दिया है ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए. एंड दिस इन्फोसिस कंपनी इज मैनेजिंग दिस एंटायर जीएसटी सिस्टम ऑनलाइन मोड पे. तो वन टाइम आई एम पेइंग, व्हेन आई पे 18% as a tax towards the government, at that time 9% directly go to the central government and remaining 9% goes to the state government. If this is the transaction within your state, you can take any example. So during the intrastate sale, intrastate यानी in the same state, so you have to pay, that consumer have to pay both CGST and IGST. अगर इंटर स्टेट रहेगा, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से बिहार, महाराष्ट्र से गुजरात, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, at that time you have to pay IGST, that is integrated tax. Okay, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक डीमार्ट का चलन लगाया है. देखिए हम लोग जब डीमार्ट में जाते हैं ना, so you will get the classification of your CGST and classification of your IGST. Suppose I have made the shopping of 265 rupees. So 265 rupees में this is the bill or this is the invoice including my CGST and IGST. और उसका classification, उसका basic breakup भी यहाँ पे देखिए नीचे दिया है. So my total basic value of my good is 249 rupees. Then on this value, I have paid 18% tax rate. So out of this 18% tax rate, 9 rupees are going towards the CGST, that is central government, and 9 rupees are going towards the state government. क्यों जा रहा है यहाँ पे IGST क्यों नहीं हुआ? Because me and my manufacturer, we both belongs to Maharashtra. That's why I have to pay. Being a consumer, I have to pay indirect tax. GST किसको भरना है? मुझे भरना है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, डिमार्ट के प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रहा हूँ. That's why I have to pay this. Getting this? So कंज्यूमर से रिकवरी होती है जीएसटी का. जो फाइनल कस्टमर रहेगा, फाइनल कंज्यूमर रहेगा, वही टैक्स पेमेंट करने वाला. Getting this? So this tax breakup is if both people are from the same state, at that time CGST and SGST are applicable. लेकिन अगर ये इंटर स्टेट है, महाराष्ट्र का गुड्स गुजरात में जा रहा है, at that time यहाँ पे जो दो स्पेसिफिकेशन दिए ना, CGST और SGST का, वो नहीं आएगा, डायरेक्टली IGST रहेगा 18%. Getting this? So this is the amount, this is how the CGST and SGSTs are charged on the consumer. Understood this bill?
तो हर एक प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन यानी कोड दिया है, फॉर एग्जांपल 8402 एंड 4202, उसके हिसाब से नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से वहां पे जीएसटी लग गया है। पहला है 5%, पहला देखिए 8402 को लग गया है 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। इसका मतलब टोटल टैक्स रेट कितना है 5%, यानी बेसिक टैक्स लग गया है। मीन्स व्हाट, दिस इज समथिंग माय बेसिक गुड्स। ये शुगर रहेगी, ये ऑयल रहेगा, ये कोई भी बेसिक प्रोडक्ट्स रहेगा कि उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट रेट सॉरी जीएसटी लग गया है। तो जीएसटी का क्लासिफिकेशन भी दिया है, टोटल जितना भी कंज्यूमर जितना भी टैक्स पे करेगा उसमें से कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और कितना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो भी यहाँ पे दिखाया है। 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट देखिए, सीजीएसटी लग गया है 8%, सीजीएसटी है और 8% क्या है हमारा एसजीएसटी है। सो 8 + 8 कितना हो गया, सॉरी 1 मिनट, आई थिंक इट इज नॉट 8%, 8 + 8 19 होगा, 16% हुआ, वो नहीं है, वो है 6% रहेगा। 6 + 6 = 12%, 5 12 89 36% है, सॉरी 28% है। तो दिस इज द 6% इज सीजीएसटी। इट मे बी सम ऑफ द क्लॉथ्स और टेक्सटाइल्स, उसके ऊपर 6 + 6% लग गया है। सो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ योर गुड्स। कोई भी चलन बनने दो, इट मे बी विथ रिस्पेक्ट टू योर सर्विस और इट मे बी रिलेटेड टू योर गुड्स, तो उसका सीजीएसटी का और एसजीएसटी का क्लासिफिकेशन वहां पे आता है। अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, सीजीएसटी और आईजीएसटी, ये और ये ऑटोमेटिकली आता है। यस स्टूडेंट्स, Yes, sir. ओके। अभी देखिए एडवांटेजेस क्या है, व्हाई वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस जीएसटी। हम लोगों ने जीएसटी क्यों इंप्लीमेंट किया? पहला है कि इट रिमूव्स द कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी कैस्केडिंग इफेक्ट मींस व्हाट, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स एंड टैक्स ऑन टैक्स जो लगता था मैन्युफैक्चरर को, इससे वो क्या हो रहा था कंज्यूमर को, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इंक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट वाज इंक्रीजिंग। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसका जो डबल टैक्सेशन का इफेक्ट था वो हम लोगों ने रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस जीएसटी। दैट इज समथिंग अबाउट cascading effect. We have removed the cascading effect on the sale of goods and services. जो डबल टैक्सेशन लगता था, इससे क्या हो रहा था, कंज्यूमर को अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, वो हम लोगों ने निकाल दिया। The removal of cascading effect will be directly impact on the cost of goods sold. इसकी वजह से क्या हुआ, cascading effect कम होने से क्या हो गया, cost of goods decreases. Then cost of goods should be decreased since tax on tax is eliminated in the GST regime. GST के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, you are not paying dual tax और double taxation. अगर हम लोग करने को भी गए ना, that system will not accept it. ये सॉफ्टवेयर है, गलत एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। In this GST is also mainly technologically driven. अभी this entire system, पहले क्या था, दिस वॉज मैन्युअल सिस्टम। आई हैव टू मेंटेन records of excise duty, I have to maintain records of VAT, central sales tax, then manufacturing duty, import duty, सब कुछ रिकॉर्ड मुझे करना पड़ता था, and I have to submit it, and सबके रिटर्न फाइल करने के डेट्स भी अलग अलग थे। तो मान लो कोई एम्प्लॉयर, कोई मैन्युफैक्चरर अगर कोई डेट मिस किया तो उसको फाइन या पेनल्टी लगती थी। गेटिंग दिस? अभी क्या है, बिकॉज सीजीएसटी भी भरना है, यस सॉरी एक्साइज ड्यूटी भी भरनी है, वैट भी भरना है, सेंट्रल टैक्स भी भरना है, एम वैट भी भरना है, तो इतने सारे का फॉर्मेलिटी अलग अलग, टारगेट डेट अलग अलग। उसमें क्या होता, तो देयर वाज द कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर। अगर मान लो गलती से कोई भी डेट मिस हो गई तो उसको क्या लगता था, फाइन एंड पेनल्टी लगती थी, बिकॉज डेट्स आर डिफरेंट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक्साइज ड्यूटी को अलग था, सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए अलग था, स्टेट टैक्स के लिए अलग था, सर्विस टैक्स के लिए सर्विस का रजिस्ट्रेशन अलग था, यानी हर एक का प्रोसेस अलग अलग था।
तो हम लोगों ने there were so many complications. So what we did, we removed all the complications by making only single tax. तो single tax होने से क्या हो गया, I got only single platform for registration, for return filing as well for refund as well. तो सारा सिस्टम ये जो है ना, ये मैनिपुलेटेड, ये ऑटोमेटेड किया है, ऑटोमेटिक प्रोसेस किया है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. तो उसमें क्या है, it is technologically driven, so that due to having technology, due to the addition of softwares, the human made mistakes are not possible, because we are not involving any person to collect the tax. कोई भी आदमी के पास जाने का नहीं है, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना है. इट इज सॉफ्टवेयर where you have to just put up the data, software will calculate your tax liability, software will automatically accept that particular tax rate which is applicable. कौन से प्रोडक्ट को कितना टैक्स लगने वाला है ये भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगा. तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है. दिस इज एंटायर सिस्टम इज रनिंग ओनली थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर, and all the activities like registration, return filing, application for refund and response to the notices need to be done online system through the GST portal. तो उसका क्या है, GST पोर्टल बनाया है, और GST पोर्टल में एक जगह पे जाके सारे आपका GST के काम एक जगह पे होते हैं, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग. किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं. कहाँ पे, by sitting at your home or by sitting at your office, you can do entire GST process. Getting this? So due to which what happened, it process gives you speed. तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग जल्दी होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली होता है, रिफंड का रहेगा तो भी इमीडिएट होता है, बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन. ओके, नो जीएसटी में क्या है देखिए, इफ यू आर इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इफ यू आर इंपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज at that time or supplying, that time you have to pay IGST, because अगर दूसरे कंट्री से हम लोग माल लेते हैं, at that time that second country will be considered as an interstate for GST purpose. उसको एक स्टेट कहा जाएगा, and you have to pay IGST along with import duty. आपको क्या करना है, if you are purchasing goods and services from other state, other country, at that time you have to pay GST as well as along with custom duty. आपको custom duty भी भरना है और GST भी भरना है. अगर मान लो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं goods and services to other country, at that time I have to pay IGST as well as export duty. Understand this? Yes, students? Yes, sir. Okay. अभी these are the advantages of the industry. पहला चीज क्या है, एक GST पोर्टल है, वो पोर्टल सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलता है, उसमें एक ही सिस्टम में सब कुछ उसमें फीड किया हुआ डेटा है, कौन से गुड्स को कितने, देयर आर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अक्रॉस द कंट्री, कौन से गुड्स को कितना टैक्स लगने वाला है ये ऑलरेडी फीड किया है. जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट योर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल इटसेल्फ accept that particular select the particular rate of tax. Entire system is self driven with the help of software. Getting this? So what are the advantages of this GST to the trade and industry? तो व्यापार को और इंडस्ट्री को उसके बेनिफिट क्या है देखिए. Simpler tax rules with fewer exemptions. Exemptions कुछ रखा नहीं, because we have various tax rate, that is 5%, that is 0%, 5%, 12%, 18% and 28%. इतना ही है. Very simple tax rules are there, and these are also self-explanatory. And entire information you will get at the GST portal. GST portal में GST काउंसिल का भी एक वेबसाइट है, GSTN नंबर का, और GST पोर्टल रहता है, वहां पे सारे इंफॉर्मेशन you will get. And entire system is self-explanatory. And increased simplicity in the doing the business and collecting the tax. Simple process किया है. And जो earlier multiple taxes थे, वो multiple taxes के वो सारे taxes को हम लोगों ने remove करके एक ही tax लाए हैं, that is something about GST. तो उसके लिए returns file करना, refund लेना, registration करना,
सब कुछ, अगर कोई शो कॉज नोटिस आया तो उसका रिप्लाई देना तो एक ही बार करना है, बार बार मुझे कोई नहीं करना है। आई डोंट हैव नीड टू अंडरस्टैंड एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद मेरा सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिप्लेस बाय द जीएसटी। जो मल्टीपल टैक्सेस थे अर्लियर, उसको जीएसटी ने रिप्लेस किया है। ओके, देन रिडक्शन इन द कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस यानी फॉर्मेलिटी कॉस्ट जो है ना, नो फॉर्मेलिटी कॉस्ट। अभी सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर से चलता है, and that software will also give me messages as well as reminder. Try to understand. इससे सॉफ्टवेयर से मुझे मैसेजेस और रिमाइंडर आते हैं, और उसका डेट फिक्स है, कौन से भी, वेदर यू विल बी फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, कौन से भी स्टेट से रहेगा तो उसके लिए वही डेट है। Getting this? So you must have to identify, or you must have to remember the dates, as well as this GST will also send us reminder. So there is the reduction in the compliance cost. No multiples record keeping. Multiple record keeping का जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं मैन्युफैक्चर रहूंगा तो मुझे एक्साइज ड्यूटी के भी फाइल्स मेंटेन करने पड़ते थे। सेंट्रल सेल्स टैक्स अगर आई एम पेइंग सेंट्रल सेल्स टैक्स, दैट टाइम आई हैव टू मेंटेन द फाइल्स ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसके बाद अगर सर्विस प्रोवाइड करता हो तो सर्विसेज टैक्स के भी मुझे फाइल्स मेंटेन करने पड़ते थे। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं करना है, you have only to maintain, you have to just visit towards the GST portal or GST council. Okay, now more efficient neutralization of the taxes, especially for the exports. Export के जो taxes थे, export duty थे, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया यानी रिडक्शन कर दिया टैक्सेस में। And it is the systematic and automated process for various processes like registration, returns, refund and tax payment। एक ही जगह पे हम लोगों को करना है, that is single window system, and through these softwares you have to do this. So these are the advantages to the trades and industries. Okay, 1 minute. अभी देखिए जीएसटी रेट्स कितने हैं, just go through this slide. There are only 5 slabs of the taxes, 4 ही slabs है। जीरो % यानी नो टैक्स। बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल मुझे शुगर लेनी है या कुछ बेसिक गुड्स लेनी है तो वो वहां पे 5% है। उससे ज्यादा अगर हम लोग थोड़ा लग्जूरियस प्रोडक्ट लेते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो 12% जाता है। उससे अगर कुछ लग्जूरियस लेते हैं, अगर लाइट व्हीकल्स में कार लेते हैं तो 18% जाएगा। अगर हम लोग गोल्ड लेते हैं तो दैट टाइम इट गोज टुवर्ड्स द 28%। समझ में आ रहा है? सो एज पर द luxury level, the rate of taxes are going to be changed, and we have just understand, कोई भी मैन्युफैक्चर रहेगा, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, उसको सिर्फ ये 5 टैक्सेस ध्यान में रखना है, 0, 5, 12, 18 एंड 28। गेटिंग दिस? तो उसमें कंफ्यूजन विल बी नॉट देयर। उसके बाद जीएसटी ने क्या किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर टैक्स सेपरेटली बाय द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टैक्सेस के रेट एंड जीएसटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बाहर रखे हैं, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स कितना है, 50%, 40%, 36%। अल्कोहलिक के ऊपर कितना टैक्स लगता है, अप टू 40%। सिगरेट, उसके बाद टोबैको, ये इसके बाहर रखा है। सॉरी, सिगरेट अभी आया है इसके अंदर, I think it is 28%. So alcoholic drinks and petroleum products are not covered under GST. These are kept intentionally because where rate of GST is more than 28%. GST में highest rate कितना है, 28%। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग कितना चार्ज करते हैं, more than 28%. Getting this? That's why they have kept outside the GST.
Okay, there is the special rate of 0.28% on the rough, precious and semi-precious stones and 3% on the gold. तो ये additional charges जिसका लगता है. Then in addition यानी गोल्ड अगर लेते हैं, ये प्रीसियस स्टोन्स लेते हैं तो ये 28% तो जाएगा. Along with this, some special tax on special product which will be 0.25% or 3%. Getting this? So this will be added into basic tax rate of GST. वो add हो जाएगा. In addition, cess यानी tax on tax, that is the surcharge. जितना हम लोग tax भरेंगे उसका फिर 2%. For example, that is called as a cess. Cess यानी surcharge. Surcharge is nothing but tax on tax. Okay. जितना for example हम लोग 100 rupees in the form of tax we are paying, तो उसके ऊपर सरचार्ज फॉर एग्जांपल 2 rupees, यानी मुझे टोटल टैक्स कितना भरना है 100 rupees इज द बेसिक चार्ज एंड 100 का 2% यानी 2 rupees, यानी 102 rupees मुझे भरना पड़ेगा. दैट इज समथिंग अबाउट सेस. सो इन एडिशन अ सेस ऑफ 22% और अदर रेट्स ऑन द टॉप ऑफ 28% जीएसटी अप्लाइज टू द फ्यू आइटम्स. तो एरिएटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स एंड टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर 22% 28 के ऊपर 22 इतना हम लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा. सो दीज आर दी जीएसटी रेट्स. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द जीएसटी काउंसिल. अभी जीएसटी काउंसिल क्या है देखिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे कि ये पहले कहां पे चलता था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये दो डिपार्टमेंट चलते थे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या करता था, जो डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स था उसका कलेक्शन देखता था, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो था, दैट सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो लेता था. अभी उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल, जीएसटी एक्ट हम लोगों ने 2017 में जो पास किया, उसमें हम लोगों ने क्या किया, जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन किया. जीएसटी काउंसिल इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी व्हिच विल एडमिनिस्टर दिस एंटायर जीएसटी टैक्स. तो जीएसटी काउंसिल जहां पे हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम था, उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या बनाया, जीएसटी काउंसिल बनाया. जैसे कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए सीबीडीटी होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को मॉनिटरिंग करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, जीएसटी काउंसिल बनाया है. जीएसटी काउंसिल इज द स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच इज फॉर्म्ड अंडर द जीएसटी एक्ट. जीएसटी एक्ट के हिसाब से जीएसटी एक्ट पास करके हम लोगों ने ये जीएसटी काउंसिल बनाया है. This GST Council is replaced all existing multiple taxation process. तो existing taxes process थे हमारे सेंट्रल सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग, एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद वैट, ये सब कुछ हम लोगों ने क्या किया, रिप्लेस किया जीएसटी काउंसिल में. एंड वी हैव इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स मेथड्स फॉर द comfort to get comfort to the taxpayer. तो वो जीएसटी काउंसिल है. जीएसटी काउंसिल इज द वन ऑफ द बॉडी which is administering entire GST tax. Okay, the council shall have also monitor all tax processes. वो council क्या करता है, tax process monitor करता है, and this council will also support to the respective departments who are working under the GST council. And they will avoid the fraudulent process. जो कुछ फ्रॉड पहले होते थे वो हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल के हिसाब से क्या, जीएसटी काउंसिल विल ऑब्जर्व द जीएसटी का हमारा वेबसाइट है जीएसटी पोर्टल, वो उसके अंडर चलेगा. If GST Council wanted to make certain announcement at that time, that announcement, that press release will be uploaded at GST portal. GST portal पे वो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे. अभी जीएसटी काउंसिल का बेनिफिट क्या है, जीएसटी काउंसिल का मकसद क्या है, व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड दिस, और उसको बेस क्या है, उसको फाउंडेशन क्या है, देखिए. Now, the process of creating GST Council is started in India when Constitution's Bill 2016 was passed. तो GST Council का प्रोसेस फाउंडेशन
जीएसटी सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बिल हम लोगों ने जो पास किया 2016 में, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, स्पेशल प्रोविजन किया है. एज पर दिस बिल वी हैव got authority to prepare or to establish the GST council, and that president has also given the permission to establish this GST council. So GST council is the regulatory authority now, and this GST bill was passed in the article 279A of as per our amended constitution. The president, somebody's mic is on, please mute it. He has a right to file a suit against the buyer or a customer for the particular price of the product. Very good. So suit for price is, in simple word, we can say that case can be filed in. Now see here what we are doing. यहाँ पे प्रोसेस क्या है, जीएसटी काउंसिल हम लोगों ने बनाया है. कैसे बनाया है? फॉर दैट पर्पज वी हैव पास्ड सेपरेट बिल इन द पार्लियामेंट इन 2016. सो दैट बिल हैज गिवन द अथॉरिटी और सम ऑफ द प्रोविजन टू एस्टेब्लिश दिस जीएसटी काउंसिल as well as, just look 1 minute, sorry. ये हम लोगों ने देखा. Now this process of GST क्या है? As per section 279A we have entered this GST council in the constitution. तो वो आर्टिकल नंबर है 279A. Now following the assent of GST bill, assent यानी सम्मति, the union cabinet in the meeting held on 12th September 2016 approved the setting up of GST council. तो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट में वो परमिशन ले लिया GST council का, and setting of the secretariat. तो further finance minister late Arun Jaitley called the first meeting on 22nd and 23rd September 2016 in the New Delhi of GST council regarding to its regulations, regarding to its formation. अभी GST council में कौन कौन मेंबर है? Just go through this slide. पहला है यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. That is nowadays who is union finance minister? Nirmala Sitharaman. She will be a by default chairman of this GST council. उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, स्टेट का जो इंचार्ज रहता है राज्य मंत्री बोलते हैं. ओके, सो दैट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, दिस विल बी अ वन मेंबर ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल. उसके बाद देखिए मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन. ओके, and minister in charge of finance and taxation of respective state. हर जितने भी इंडिया में, जितने भी कंट्री में, जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यूनियन मिनिस्टर, उसके बाद स्टेट इंचार्ज, उसके बाद एवरी स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल. देन सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू or ex officio secretary, this will be also member. Then chairperson of central board of excise and custom, जो already earlier जो ये था हमारा system, उसका chairperson. Okay, as a permanent invitee, but he is not having voting right to all proceeding of the council, तो वो भी member है. उसके बाद one post for additional secretary to the council in charge of secretary, एक position उसके लिए है. Then 4 posts for the commissioners in the GST secretariat at the level of joint secretary to the government of India. So ये GST का formation है, ये GST council का formation है. These are the members. Okay, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यानी कितना हो गया, स्टेट मिनिस्टर हर एक राज्य से एक एक जाएगा. गेटिंग दी. तो बाकी जो सेंट्रल लेवल का जो है उसमें तो लिमिटेशन है, तो इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. लेकिन मेजर पॉपुलेशन किसका है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टेट मिनिस्टर, हर एक राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर कितने हैं? अराउंड 30 to 34, 35. दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस जीएसटी काउंसिल. हर एक राज्य का
एक मेंबर इसका जीएसटी काउंसिल का मेंबर है। अभी देखिए व्हाट इज द टाइम, दैट इज ओके। अभी डिसीजन मेकिंग कैसा चलता है देखिए, द जीएसटी काउंसिल विल मेक द रिकमेंडेशन ऑन, जीएसटी काउंसिल काम क्या करती है देखिए, कि कौन से गुड्स के ऊपर कितना टैक्स लगाना है, कितना सेस लगाने हैं, कितने सरचार्जेस लगाने हैं, जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड। Goods and services which are possibly will be subject to the exempt of tax, कौन से गुड्स टैक्स के बाहर रखना है, 5% को 0% करना है, 0 को 5% में लाना है, 5 को 12 में लाना है, 12 को 18 में लाना है, 18 को 28 को लाना है। Who will decide? This GST council will decide किसको, कौन से गुड्स को, कौन से सर्विसेज को एग्जम्पशन देना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा टैक्स करना है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना रखना है, टर्नओवर कितना होना चाहिए। इन केस ऑफ नॉर्मल मैन्युफैक्चरर लिमिट है, एग्जम्पशन है 40 लाख रुपीज। अगर 40 लाख के नीचे मेरा टर्नओवर है तो दैट टाइम देयर इज नो नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस जीएसटी, तो जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन की भी जरूरी नहीं है, यू कैन डू वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर उससे ज्यादा है तो भी जाके हम लोगों को करना पड़ेगा। सो जीएसटी काउंसिल क्या करेगा, एग्जम्पशन कौन से गुड्स को देना है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना रखना है विथ रिस्पेक्ट टू टर्नओवर, और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जीएसटी, जीएसटी के फंक्शंस क्या क्या रखने हैं, दैट विल बी डिसाइडेड। उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी विल बी डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी लॉज में मॉडिफिकेशन करना है, अमेंडमेंट करना है, लेवी ऑफ टैक्सेशन, अपॉर्चमेंट ऑफ आईजीएसटी। अभी तो कितना है, 50-50% है। जितना आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा उसमें से आधा हिस्सा हर एक स्टेट को आएगा, तो उसका आधा हिस्सा रखना है या 40% रखना है, 60-40 रखना है, 70-30 रखना है, 50-50 रखना है, it will be decided by this GST council. Then all the principles related to the place of supply, जो कुछ principles रहेंगे that will be decided by this GST council. Then there are some of the very underdeveloped states, for example Himachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बारे में कुछ अगर स्पेशल प्रोविजंस करने हैं विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, दिस प्रोविजन विल बी अगेन कंसिडर्ड और विल बी टेकन बाय दिस जीएसटी काउंसिल। ये हक किसको है, जीएसटी काउंसिल को है, बिकॉज स्टेट हैज ऑलरेडी लूज देयर राइट्स। जीएसटी आने से क्या हुआ, स्टेट के पास कोई भी अथॉरिटी अभी जीएसटी के बारे में नहीं है, सारा अथॉरिटी हम लोगों ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। एंड अदर मैटर्स पर्टेनिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द जीएसटी, ये सारे एक्टिविटी, सारे डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल करेगा। गेटिंग दिस? अभी देखिए जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं और कैसे वोटिंग राइट होता है। सो जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन कैसे हो गया, एज पर आर्टिकल 279A वी हैव मेड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट बनाया है। एंड ये एक्ट ने क्या किया है, द एक्ट हैज गिवन सम अथॉरिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम अथॉरिटी टू स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को भी क्या किया है, अथॉरिटीज दे दिया है। ओके और ये जीएसटी काउंसिल चलता है चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कोई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा वो बाय डिफॉल्ट उसका चेयरमैन रहेगा। देखिए 2/3 रिप्रेजेंटेटिव विल बी दैट ऑफ द स्टेट। तो जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, टोटल जितने भी मेंबर्स है उसमें से 2/3 मेंबर स्टेट के होते हैं एंड रिमेनिंग 1/3 मेंबर विल बिलोंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब वोटिंग राइट किसको ज्यादा मिल गया है, स्टेट को मिला है। गेटिंग दिस? बिकॉज 1/3 मेंबर विल बी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और एट फ्रॉम सेंट्रल लेवल एंड 2/3 मेंबर्स means what, approximately 60% or 65% members are from various states, means majority of even this GST is from states, state government का हिस्सा ज्यादा है, representatives ज्यादा है। all the decisions will require 75% of the voting। तो कौन वोटिंग कर सकता है, all the state governments, state ministers वो वोटिंग करेंगे। और कोई भी एक्ट पास करना है, कोई भी डिसीजन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, तो 75% वोटिंग होना चाहिए, तभी वो
पास हो जाएगा। Thus, practically any decision in GST Council cannot be taken without consent of the government. तो मैक्सिमम वोटिंग राइट, मैक्सिमम पावर किसके हाथ में है? नाउ वोटिंग के हिसाब से चलता है, वोटिंग ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट का होगा। मींस बेसिकली कंट्रोल इज फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, बट मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आर फ्रॉम वेरियस स्टेट्स। स्टेट का हिस्सा ज्यादा है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी। एज वेल एज here it will have statutory powers in case of following situations. Statutory power दिया है किसको? When petroleum products should be brought in the GST or not. GST के अंडर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाना है या नहीं लाना है, वो कौन डिसाइड करेंगे? स्टेट विल डिसाइड। गेटिंग दिस? अगर जीएसटी में अगर स्टेट बोलते हैं कि नहीं लाना है, अभी तक स्टेट बोल रहे हैं कि नहीं लाना है, दैट्स व्हाई पेट्रोल के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस और वाइन के प्राइसेस हर एक स्टेट में अलग अलग है। गोवा में सस्ता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, गुजरात में कुछ अलग है। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ जीएसटी। ये अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका हिस्सा दे दिया है। अंडरस्टैंडिंग दिस? सो पेट्रोलियम प्राइसेस, गैस के प्राइसेस और हम लोग के वाइन या अल्कोहल के प्राइसेस अलग अलग है। हर एक स्टेट में हम लोग गए तो अलग अलग। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अंडर जीएसटी। देन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या करता है? स्टैट्यूटरी पावर किसका दिया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ आईजीएसटी एंड सीजीएसटी अमंग यूनियन एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स जाता है, उसका स्टेट को कितना हिस्सा देना है, कितना अमाउंट खुद के पास रखना है। यानी 9% इज गोइंग आउट ऑफ 18%, 9% डायरेक्टली कमिंग टुवर्ड्स द स्टेट। एंड जो 9% सेंट्रल के पास जा रहा है, उसमें से सेंट्रल के पास जो 9% जा रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा कुछ स्टेट को देना है या नहीं देना है, या नहीं देना है, दैट विल बी डिसाइडेड इन द जीएसटी काउंसिल, मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल। देन कंटिन्यूएशन ऑफ 1% टैक्स ऑन गुड्स एंड सप्लाई, लेना है या नहीं लेना? अभी तो वो नहीं लेते हैं 1% टैक्स। Then compensation to the states on the loss of revenue for the period of last 5 years. So when GST was implemented at that time, few states were neglecting. कुछ लोगों ने, कुछ स्टेट ने परमिशन नहीं दिया था। At that time, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अगर इस जीएसटी लॉन्च करने के बाद कोई भी स्टेट का कुछ लॉस होता है ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस जीएसटी अप टू 5 years, सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव सम अमाउंट फ्रॉम देयर कस्टडी, फ्रॉम इट्स कस्टडी। तो कोई भी कुछ स्टेट ऐसे थे, फॉर एग्जांपल पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ओके, वो बोलते थे कि हमको जीएसटी नहीं चाहिए, क्योंकि दे हैड फियर अबाउट द कलेक्शन, अबाउट द टोटल टैक्सेस। क्योंकि some of the times what may happen, manufacturer will move from one state to other state. Getting this? अभी क्या है, किधर भी जाओ, कौन से भी स्टेट में जाओ और बिजनेस करो, जीएसटी का रेट चेंज नहीं होने वाला है। पहले क्या थे, जीएसटी टैक्सेस अलग अलग थे। सो स्टेट हैज सर्टेन पावर। पहले क्या था, बिफोर एंट्री ऑफ जीएसटी, स्टेट हैज सर्टेन पावर टू डिसाइड द एम वैट। वैट डिसाइड करना स्टेट के हाथ में था। तो वैट का रेट गुजरात का अलग था, महाराष्ट्र का अलग था, गोवा का अलग था। उसके बाद हमारे ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर का अलग अलग था। गेटिंग दिस? तो जम्मू कश्मीर को टैक्स ही नहीं था पहले। गेटिंग दिस? अभी क्या हुआ है, हम लोगों ने सारा सेंट्रल जीएसटी के उसके कस्टडी में लाया है। तो अगर कोई जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से किसी राज्य का कुछ लॉस होता है, तो उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। Okay, the council will make the recommendation to the union and states on imports of issue like tax rate, exemption, threshold limit, disputes and resolution and modalities. तो इसके बारे में जीएसटी को परमिशन काउंसिल गाइडलाइंस दे देगा। और जिसके 5 साल तक अगर कोई भी स्टेट का लॉस होता है, तो उसको क्या करेगा, 5 साल तक कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे पाएगा। So that was the authorities given. Okay, so this was something about GST Council. उसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट जो है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे, बिकॉज वी हैव फिनिश्ड आवर टाइम। ओके,
this is the way we are moving ahead. In case of any clarification, in case of any doubts, in case of any anything related to this teaching, you can ask me. अगर आपकी कुछ डाउट्स है, एक्सप्लेनेशन कम होता है, ज्यादा होता है, या कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, you can ask me. Okay? Are you getting everybody whatever I am teaching you? Otherwise there will be no Yes, sir. use. Yes, sir. Okay? सबको समझ में आता है concepts? Yes, sir. अभी क्या हो गया, हमारा एक हाँ। हफ्ते का गैप पड़ गया. ओके, इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है. एंड दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल लैंग्वेजेस एज वेल. तो हम लोग in case of any kind of doubts, if you want more clarification, you can ask me. Okay, but don't carry your doubts and your misconceptions. Okay, so let us stop here. Tomorrow we have session at 8 p.m. in the evening. You know this, na? Yes, students. Yes, sir. Tomorrow Yes, and sir. day Yes, after sir. tomorrow at 8 p.m. in the evening, we have a session of this GST. So be there, be present there. Okay. So let's stop here. Thank you so much. Thanks for your time. Thank you, sir. Thank you, sir.